हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम सब ने डिस्कस कर लिए थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का लाइक 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज निकालनी सीखी थी। होप सो आपको वो टेबल ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी स्टार्ट दैट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ आपकी एनसीईआरटी 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, जिसमें मुझे इन्हें इवैल्यूएट करना है। एंड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस पार्ट वी नो दैट कि साइन 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा था, ये √3/2 होगा। कॉस 30 डिग्री भी यहाँ पे √3/2 होगा। आप आराम से उस टेबल को चेक करिएगा, यू विल गेट दीज वैल्यूज वेरी केयरफुली फ्रॉम देम। सिमिलरली साइन 30 डिग्री हाफ होगा, एज वेल एज कॉस 60 डिग्री भी बेटा हाफ होगा। Therefore, when you solve this question, it is √3/2, √3/2, 1/2, 1/2. It is 3/4, 1/4, 4/4 and your answer is 1. तो इस तरह से हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, और होप सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म विद दैट टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी गेट अवर आंसर। हियर we get √3/3, √3/4, it is 3/4, it is 1/4. Take the LCM, simplify, you are getting your result. Now बेटा we move to our part number second, जिसमें मुझे solve करना है 2 times tan square 45, and you know that tan square 45 can be written here as tan theta का whole square. In a very same manner we can say this as cos 30 degree का whole square, and this is sin 60 degree का whole square. So my dear student, when we go for the part number second, we need to convert the function in the terms of square. It is tan 45 का whole square, cos 30 degree का whole square, sin 60 का whole square. Now, when you get the simplification of this value, we have to substitute the results one by one. Be very careful about the terms that कि tan 45 degree का मतलब 1 होता है, और cos 30 डिग्री का when you observe that table, cos 30 डिग्री is basically √3/2, sin 60 डिग्री is basically √3/2. तो with the help of that table, चाहे तो आप अलग अलग लिख के देख लो, जैसे यहाँ पे भी देखो cos 30 √3/2, sin 60 √3/2 और tan 45 1. It is 2 into 1, it is 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का, this is cancel out here and we get our answer as 2. So as a result beta, we had the result of question first both of the part. In the part number 1 we get our answer of this question as 1 by putting these all values and simplifying our terms. And in the part number second, when after making this basic adjustment कि मैंने सबके स्क्वायर्स को कॉमन लेके लिखा ऊपर, फिर सब्स्टिट्यूशन किया, सिंप्लीफाई किया, we again get the answer of our second part as 2 only. नाउ बेटा कंसिडर करो पार्ट नंबर थर्ड ऑफ सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मुझे फाइंड आउट करनी है इन इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन, जिसमें cos 45 1/√2 है, एज वी नो दैट कि इट इज 1/√2, sec 30 डिग्री इज 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री इज 2. So with the help of these three trigonometric ratios which we obtained from the table we already discussed in our previous lecture, we have the results of these table value. Now putting these values to a given question, it is 1/√2. Here it is 2/√3 and here it is 2. So this is the substitution of the values of all these three trigonometric ratios in our given question. Now what you need to do here, you have to plan for the LCM and simplification of this question. तो अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे, इधर आ गया √3 और इधर आ गया 2 + 2 √3. नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस टर्म वेरी केयरफुली हियर, एंड फॉर दैट शिफ्टिंग वी आर गेटिंग द आंसर एज √3/2 √2, 2 + 2 √3. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू वी गेट फ्रॉम अवर क्वेश्चन नंबर first part third. In this part we first of all put these all values one by one in our question, then we take the LCM of our denominator part and we get this value. Here we can just shift the terms carefully. ये मैंने terms को automatically shift कर दिया है. After shifting it carefully, we are now left with √3
root 2, 2 common, 1 plus root 3. Here it is possible for us to take this root 2 common from it. Here finally we get our answer as root 3, 2 root 2, root 3 plus 1. This is the one of the simplified value of our question, but as we all observe here very carefully that कि इसमें denominator में root वाली terms आ रही है, we go for the rationalization of it. तो सबसे पहले मैंने root 2 को rationalize करा, ये तो आ गया root 6 क्योंकि root 3 into root 2 है और ये बन गया 4 root 3 plus 1. Now think very carefully about it कि ये कैसे 4 आया. This is 2 and root 2 give you 4. तो it is 4 and it is root 3 plus 1. अब फर्दर रेशनलाइज करते हैं और जैसे मैंने फर्दर रेशनलाइज करा, इट इज रूट 6 रूट 3 माइनस 1 4 एंड इट इज रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. इट इज रूट 6 यानी कि वी आर सेइंग दैट इट इज रूट 18 माइनस रूट 6 4 3 माइनस 1. सो इन द एंड ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दैट the simplification of this value is root 3 minus 2 root 6 upon 8. So this is the required respective answer of part number 3rd. So as you concern the question number first part 3rd, you can observe that कि trigonometry ने तो अपना रोल पहले स्टेप पे ही खत्म कर दिया था. With the help of that 3 basic trigonometric ratios मुझे ये आउटपुट मिल गया था. अब यहाँ से मुझे अपने आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ा और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी, जिसके लिए न्यूमरेटर में नो चेंज और डिनोमिनेटर में मुझे लेना पड़ा एक एलसीएम एज रूट 3. देन वी जस्ट मेक दिस शिफ्टिंग हेयर. ये रूट 3 1 के साथ चला गया, रूट 2 नीचे आ गया और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया. आफ्टर दिस मैंने इसे लिख दिया 2 रूट 3 ऐसे और नीचे आ गया रूट 3 प्लस 1. अब रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट टू गेट अ सिंप्लीफाइड वैल्यू फ्रॉम इट. तो इस तरह से बेटा हमारे पास यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 तो मिल गया रूट 6 और ये 2 इंटू रूट 2 गिव यू 4 क्योंकि वी नीड टू मेक दिस रेशनलाइजेशन हेयर. आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद रूट 3 प्लस 1 एंड टू सिंप्लीफाई दिस रूट 3 प्लस 1 you again need to multiply and divide whole answer by its rationalizing factor. So what is the rationalizing factor of root 3 plus 1? It is root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. ऊपर रूट 6 रूट 3 minus 1, यहाँ पे 4 उधर a plus b है minus b. What is the identity of a plus b and minus b? It is a square minus b square. When you simplify your answer, in the end, we obtain the required answer of this question. अब मैं पूछा बेटा आपके लिए पार्ट नंबर 4 पे, which is another very important part of this particular question, particular part of the question number 1, जिसमें मुझे इन 6 trigonometric ratio को simplify करते हुए अपना conclusion find out करना है. उम्मीद है टेबल आपने अपने सामने खोल लिया होगा और इवन याद कर लिया होगा. हाउ टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30. तो व्हेन यू चेक द टेबल वेरी केयरफुली इन द रो ऑफ साइन विद एंगल 30 यू विल गेट दैट इट इज हाफ. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द 1045 डिग्री इन दैट पर्टिकुलर टेबल इट गिव यू अ वैल्यू 1. In the very same manner, when we try to find out the value of cosec 60 degree, the value of cosec 60 degree is 2 by root 3 because it is the reciprocal of sine. So as a result, in our numerator, we get the 3 trigonometric ratio values as half, 1 and 2 by root 3. In a very same manner, we now go for a denominator as well and get the result of sec 30 degree which is 2 by root 3, a reciprocal of cos. Cos 60 degree is just half and this is 1. तो ऐसा रिजल्ट बेटा मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. इन द केस ऑफ न्यूमरेटर द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 root 3. हियर इट इज root 3, हियर इट इज 2 root 3 एंड हियर इट इज 4. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, इधर रूट 3 ऊपर चला गया, इधर 2 root 3 उधर चला गया, इधर 4 आ गया. इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो व्हेन वी टेक द एलसीएम इट इज 4, it is root 3 and that is 2 root 3. So this is the way to get the LCM of both of the parts in a numerator as well as in a denominator. And here it is very clear that this term is easily cancelled out with this term only. Now in the numerator root 3 and 3 root 3 give you 3 root 3 and minus 4. In a denominator as well it is 3 root 3 plus 4. बहुत यूनिक सा आंसर निकला है. जो कुछ न्यूमरेटर में आया है वही ऑलमोस्ट डिनोमिनेटर में आया है बट साइन अपोजिट आया है. तो एक बार रीचेक करो यहाँ तक, देन वी गो फॉर अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर क्वेश्चन. इन द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 वी पुट साइन 30 एज हाफ, 1045 as 1, cosec 60 as 2 by root 3, sec 30 as 2 by root 3, cos 60 as half
and cot 45 as 1. Then we take our LCM in a numerator as well as in a denominator and go for a simplification of our question. After having this much of answer, it is quite clear this is not a final result of our question क्योंकि it contain a root containing term, irrational term in its denominator. That is why we have to get the rationalization of this fact term here, and to get that rationalizing factor वी नो डैट डिनोमिनेटर वाले टर्म के साइन को चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना. इस तरह से ये अपने आप के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स बन गया है. न्यूमरेटर के अंदर ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया है और डिनोमिनेटर के अंदर ये 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 आ गया है. अब हमें पता है कि ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, डैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो नीचे फॉर्मूला लगेगा वो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जिसका रिजल्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Therefore, my dear student, when you go for the simplification of it, it is 27 plus 16 minus 24√3 and denominator it is 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ईजिली क्लियर हो चुका होगा इस पार्ट के अंदर. अब ऊपर जो सम आ गया वो 43 आ गया एज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स विच इज इक्वल टू 43, और इधर जो रिजल्ट आ रहा है दैट्स रिमेन एज इट इज, नो चेंज इन इट, एंड हियर इट इज 27 माइनस 16. In the end, and the simplification we get from our question is 43 minus 24 upon 11. So as a result, we are obtaining the result of part number 4th as well. In the part number 4, first of all, we put all that 6 trigonometric ratio one by one carefully with the help of that table. Then we take the LCM here in a numerator and denominator too. दोनों में ले लिया LCM, फिर एक दोनों कट गए, एक इस तरह से रिजल्ट बचा. This is not a finalized result because it contain a root containing portion, means irrational term in its denominator. That is why we make a rationalization here, simplify using this basics formula. In the end, we are obtaining the answer of our part number 4 as 43 minus 24√3 upon 11. Now beta, consider the part number 5 of question number 1st, where you have to simplify this question in a very simple way. But when you check the question carefully, you will observe that the trigonometric table ratios contain the degrees also. That is why this is the foremost thing you have to done in your question, जिससे कि हमारे को values डालते समय कोई confusion या कोई mistake ना हो. तो मैंने यहाँ क्या किया बेटा, मैंने सबसे पहले लिखा cos square 60 degree can be written as cos 60 का स्क्वायर, sin square 30 degree can be written as here as sec 30 का whole square, and it will working in a very same particular manner. तो ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जिसमें पावर थी, जिसमें डिग्री थी, उन्हें इस तरह से सिंप्लीफाई करा. अब यहाँ आ गया 5 एंड हेयर इट इज हाफ cos 60 डिग्री, एंड हेयर इट इज स्क्वायर, एंड व्हाट यू से अबाउट 6 at 30 डिग्री, इट इज 2/√3 and it is 1 का स्क्वायर. तो this is the way to get the values of your trigonometric ratios table one by one with the help of that table. Cos 60 is half, sec 30 degrees 2/√3, tan 45 degrees 1. Same manner में नीचे आया sin 30 half and cos 30 as √3/2. So as a result beta, one by one we are putting the values of our t ratios in the given question in such a manner कि now we can simply simplified the result of this question. 5 into 1/4, 4 into 4/3 minus 1. This is the result. Denominator में it is 1/4 and 3/4. This is the output of our question. Now we go for more simplification here. It is beta 5/4, 16/3 minus 1 whole upon 1/4, 3/4. Now it is 12 बेटा, तो अगर इधर 12 है तो it is 15 plus 64 minus 12, it is 1 plus 3/4. तो this is the way to take the LCM of our question. You have to observe that पहले तो values को put कर लिया गया, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, इसका स्क्वायर 4/3 आ गया, उसका स्क्वायर 1 आ गया, इसका स्क्वायर 1/4, उसका स्क्वायर 3/4. देन न्यूमरेटर को अलग से एलसीएम ले लिया गया, डिनोमिनेटर में अलग से एलसीएम ले लिया गया.
इन दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, ऊपर देखो 15 और 64 का सम 79 आ गया, 79 में से 12 गए, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 79 minus 12, it is 67 upon 12 और here it is 4 upon 4. तो my dear student 4 से 4 तो ऐसे ही cancel out हो गया. We are just left the answer of our this question as 67 by 12. तो hope so NCERT के आज के पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हमने डिस्कस करे. They are very simple and easier parts. आपने नोट किया होगा सभी में हम स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और एज एंड व्हेन ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है, वो अलजेब्रिक रूल अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और इन दी एंड वी आर गेटिंग अवर रिजल्ट्स ऑफ इट. नाउ बेटा कंसिडर करेंगे हम सेकंड टाइप क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. आपको बताना है ये रिजल्ट इसमें से किसके इक्वल है और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है. तो हियर इट इज क्लियर दैट कि सबसे पहले तो मेरे पास एक रिजल्ट है 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री. दिस इज द फॉर्म सिंप्लीफिकेट टर्म जिसे मुझे यहाँ सिंप्लीफाई करना है. एक आइडेंटिटी है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसे सिंप्लीफाई करना है. सिंस वी ऑल नो साइन 10 30 डिग्री इज बेसिकली 1/√3. Therefore, this result will give you 1 upon 2 into 1/√3, 1 plus 1/√3 का होल स्क्वायर. तो ये मेरे पास इसका एक रिजल्टेंट आउटपुट आ गया है जहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर मैंने 10 30 को 1/√3 लिख दिया है और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही किया है. इट इज़ 2/√3 and it is 1 plus 1/3 because there is a need to get the square of this part also. अब जब इतना सब क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं हम लोग. It is 2/√3 and in the denominator we take the LCM as 3. It is 3 plus 1, 2/√3 and this is 4/3. This indicate 2/√3 into 3/4. As it is quite clear कि जो डिवाइड में होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है. या ऐसा समझो 3 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया. Now reduce it carefully. It will give you a 3 upon 2√3. Then you make a rationalization here. And after having the rationalizing of this factor, we are getting 3√3 upon 2 into 3. 3 से 3 भी चला गया and we are left with √3/2. तो मेरे पास जो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है वो √3/2 आ गई है. रीचेक इट अगेन. 30 डिग्री को लिख दिया मैंने 1/√3, ऊपर भी और नीचे भी. नीचे होल स्क्वायर खोला, सिंप्लीफाई कर लिया, रिडक्शन कर ली, काट पीट लिया, मेरे पास आंसर √3/2 आ गया. नाउ थिंक अबाउट द वैल्यू. इट इज ऑल्सो √3/2. दिस इज हाफ, दिस इज √3, दिस इज हाफ. होप सो ये रेशियोज आपको पता होगी. तो इससे कंफर्म हो गया कि ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए से मैच कर गया. देयरफॉर दिस इज बेसिकली इक्वल टू साइन 60 डिग्री. हेंस ऑप्शन ए इज द सुटेबल आंसर फॉर अवर क्वेश्चन. तो व्हाट वी हैव टू कंसिडर यार, पहले गिवन टर्म को सिंप्लीफाई करा, एक रेशियो निकाल ली, फिर इन चारों की भी रेशियो निकाल ली एंड इन द एंड वी कंपेयर दैट साइन 60 भी √3/2 आ रहा है और 10 की वैल्यू भी ये √3 आ रही है. इसलिए हम ये कह देंगे कि जो 2 टाइम 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है that is basically equal to sin 60 डिग्री. ये sin 60 डिग्री के इक्वल है. ऑप्शन ए इसके लिए बेस्ट सुटेबल आंसर है. नाउ बेटा कंसिडर करेंगे हम लोग पार्ट नंबर सेकंड हियर जिसमें एक बार फिर से मुझे 1 minus 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 plus 10 स्क्वायर 45 डिग्री को इवेल्युएट करना है. सिंस 10 45 डिग्री इज बेसिकली 1, you need to remember this trigonometric ratio here कि आप इसे as it is याद करोगे कि 10 45 डिग्री 1 है. इसलिए ये 1 minus 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर है और ये बेटा 1 plus 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर है. एज अ रिजल्ट इट इज 1 minus 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 1 plus 1 का स्क्वायर. दिस इज 1 minus 1 upon 2. द रिजल्टेंट आंसर इज 0. And when you check very carefully, we are in a position to say that option D is the suitable for the part number second. भाई अगर आप इसके लिए भी सोच रहे हो तो इसका मतलब तो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी बोलते हैं हम इसे, तो ये तो 0 की इक्वल होगी नहीं. 1 तो कभी भी 0 की इक्वल नहीं होगा और ये 1/√2 है. तो एज अ रिजल्ट वेरी क्लियर डी इज द आंसर फॉर द पार्ट नंबर सेकंड ऑफ अवर क्वेश्चन जिसमें मैंने 10 45 को 1 रखा,
फिर ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन से 0.2 आ गया और 0.2 इज बेसिकली 0। दैट इज वाई आवर आंसर इज मैच विद द ऑप्शन नंबर डी। नाउ बेटा कंसिडर करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जिस पर लिखा गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, ये कब ट्रू होगा a की किस वैल्यू पे। तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, हमें यहाँ पे 1 बाय 1 इन ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह यूज करना है। एक बार मानना लेट a 0 है, चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 डिग्री, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे ये दोनों इक्वल आएंगे वो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वी स्टार्ट विद द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहला केस लिया मैंने जब x 0 डिग्री है, तो यहाँ LHS लिया मैंने sin 2a मीन्स sin डबल ऑफ 0 डिग्री मीन्स it is sin 0 degree and the value we get from the sin 0 degree is 0। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई है। फिर मैंने RHS साइड ली which is 2 sin a means which is 2 sin 0 डिग्री और sin 0 is again 0, it is 0। यहाँ पे तो पहले ही एंगल का डबल करा था तो 0 आ गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है। Therefore at a equal to 0 डिग्री sin 2a is equal to 2 sin a is true। तो ये कंफर्म हो गया, ए ही इसका ऑप्शन है। एज इट इज क्लियर डैट कि sin 2a की वैल्यू हमारे पास a को 0 डालने पे sin 0 आ रहा है विच इज 0, फिर 2 sin a में a की जगह पे 0 डालने पे आंसर आ रहा है फिर से 0। इट इज क्लियर डैट कि एट a इक्वल टू 0 डिग्री दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज ट्रूली वर्क। इसी तरह से बाई चांस अगर ये केस वर्क नहीं करता फिर हम सेकंड केस लेते हो 30 डिग्री डालते, तो उसमें LHS RHS से इक्वल आता है, ऐसे ही फिर नहीं तो डी केस या फिर सी केस। बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन पे ही ट्रू आ गया। इट मीन्स हमारे क्वेश्चन के लिए यही इसका फाइनल रिजल्ट है। नाउ बेटा कंसिडर द पार्ट नंबर 4 जिसमें फिर से लिखा है 2 टाइम tan थीटा 30 degree 1 minus tan square 30 degree is one of the option out of these. This is very similar as its part number first also. Here you can observe that कि मेरे को जो सिंप्लीफिकेशन करनी है वो 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की करनी है। सिंस tan 30 डिग्री जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 1/√3 होता है, इस वजह से इट इज़ 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। This is the way to make the simplification of our question here. I am just replacing the tan 30 degree with 1/√3. Because of that, it is 2 upon √3 and 1 minus 1/3. It is 2 upon √3 and it is 3 minus 1/3. It is finally, when you simplify it carefully, it is 2/√3. 2 upon 3 because when you take LCM and simplify it is 2/3. It is 2/√3 into 3/2 क्योंकि here we need to make the reciprocal of our denominator part. Now beta it is 3 upon √3 which means √3 into √3 upon √3 which means it is √3. So as a result the value we obtain from the simplification of given function is √3. तो इसका पूरा आंसर √3 आ रहा है। Here we have to check 1 by 1. Sin 60 is half, cos 60 is half, sin 60 is √3/2, tan 60 is √3 and this is half. तो as it is very clear that कि जो √3 आ रहा है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो therefore we can say that 2 टाइम tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री is equal to tan 60 डिग्री। That is why option C is the final result of our question. तो हेयर यू कैन ईजिली ऑब्जर्व डैट कि पहले मैंने गिवन फंक्शन को कॉपी किया, 30 डिग्री को 1/√3 प्लेस कर दिया, नीचे वाले टर्म में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा, फिर यहाँ से ये एडजस्टमेंट करी। ये एडजस्टमेंट क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसे रेसिप्रोकल कर दो या इस तरह से सोचो कि शिफ्टिंग कर दी हमने। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट व्हेन यू गेट द सिंप्लीफाइड आंसर योर रिजल्ट विल बी √3 एंड हेयर वी हैव द 4 ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। उन सभी ऑप्शंस के आंसर्स को भी 1 by 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इवेल्युएट कर लिया और इन द एंड वी कंक्लूड दैट कि जो सी ऑप्शन है उसका आंसर भी √3 आ रहा है और इसका भी आंसर √3 आ रहा है। इन द एंड वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट हमारा गिवन फंक्शन सी ऑप्शन के इक्वल है।
नो बेटा कंसिडर करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 जिसमें लिखा हुआ है 10a + b √3 है, 10a - b 1/√3 है, a और b का सम 0 से 90 के बीच में है, एंगल a एंगल b से बड़ा है। देखो कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। एंड दिस इज वन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन जो 3 साल लगातार हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में आया है। अलग अलग सेट के अकॉर्डिंगली होता है ये पेपर का सेट। यहाँ पे हमारे पास 10a + b की वैल्यू √3 है। तो यहाँ हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हम सोचना क्या चाह रहे हैं। हम ये सोचना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन जो 10 होता है उसकी वैल्यू √3 60 डिग्री पे आती है। एंड दिस इज यू नीड टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को जब आप फॉलो करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा 10 के टेबल पे जो √3 है वो 60 डिग्री पे आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर सिंपली से डैट कि जो ये 10a + b का रिजल्ट √3 था वो बेसिकली 10 60 डिग्री था। इससे मुझे एक इक्वेशन मिल गई a + b इज 60 डिग्री आफ्टर कंपेयरिंग द एंगल्स ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स। तो इस तरह से मुझे मिला मेरे क्वेश्चन से पहला रिजल्ट कि a और b का सम 60 डिग्री है, यानी कि a और b 0 और 90 के बीच में है। उसके बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 10a - b 1/√3 है। बट यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट द रेशो कि वो कौन सा एंगल होता है 10 के टेबल पे जहाँ पे मुझे एक बार फिर से 1/√3 एज अ आंसर मिल जाता है। तो आप कहोगे वो 60 डिग्री है। तो टेक दिस एज थर्ड, दिस एज फोर्थ, एंड वी कैन से दैट फ्रॉम द वैल्यू थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने से हमें यह कंफर्म हो रहा है कि 10a - b की वैल्यू 30 डिग्री है। और व्हेन वी कंपेयर देयर एंगल्स तो a - b की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो एज अ रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट्स ऑफ दीज टू टर्म्स, इन दोनों बेसिक चीज़ों को सोचने के बाद, कंपेयर करने के बाद मुझे ये कंफर्म हो गया है कि a + b का आंसर 60 डिग्री है और a - b का आंसर 30 डिग्री है। तो दिस इज द वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हियर यू से दैट 10a + b √3 है तो a + b 60 डिग्री आ गया, 10a - b 1/√3 है तो a - b 30 डिग्री आ गया। नाउ वी गेट टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस यू आर सेइंग, जैसे x और y आ गया, x और -y आ गया, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड जो हमने लीनियर इक्वेशन नाम के चैप्टर में डिस्कस किया था। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जो एंगल A आ गया वो 45 आ गया। एंड नाउ पुट दिस एंगल A टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चन हियर, यू गेट द सिंप्लीफाइड वैल्यू विच इज 15 डिग्री। तो इधर बेटा मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 3 हियर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, जिसमें आप लोगों के पास 10a + b √3 था और वो एक्चुअल में √3 होता है 60 डिग्री में। इसलिए इन शॉर्ट मुझे ये पता चल गया कि a + b एक 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10a - b 1/√3 था जो बाय कंपैरिजन ये कंफर्म हो रहा है कि ये होता है 30 डिग्री पे, इसलिए a - b √3 आ गया। a + b और a - b दो की इक्वेशंस मिल गई, मैंने उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन में आंसर a as 45, b as 15 एंड दिस ऑल्सो फुलफिल दिस रिलेशन कि एंगल A एंगल B से बड़ा आ रहा है और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45 एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। नाउ बेटा वी हैव टू कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वन ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन एंड हियर वी नीड टू जस्टिफाई द आंसर with the help of the information we have in our question. तो check it very carefully. What is the information here? It is given that check करके बताना है आपको क्या sin a + b is equal to sin a + sin b. प्लीज इस बात को याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी आइडेंटिटी तभी ट्रू मानी जाती है जब वो सभी वैल्यूज के लिए होती है। अगर ये रिजल्ट कुछ वैल्यूज के लिए वर्क करता है और कुछ के लिए नहीं करता तो हम इसे जनरली फॉल्स मानते हैं। इज दिस क्लियर? ट्रू और फॉल्स का ये सीन होता है कि कोई चीज़ अगर पर्टिकुलरली हमेशा एक ही इसी पैटर्न को फॉलो करेगी तो वो ट्रू है,
कभी कभी पैटर्न करेगी फॉलो को, कभी कभी नहीं करेगी, तो इट मीन्स वो फॉल्स है। तो हेयर यू हैव टू चेक दैट क्या ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू वर्क करेगा। तो हमारे को इसको चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या नहीं है। एज इन अ पार्ट फर्स्ट, तो मैंने सबसे पहले लिखा लेट ए को ऐसा कोई एंगल ले लिया लाइक 30 डिग्री और बी को एक ऐसा एंगल ले लिया लाइक 60 डिग्री जिसका सम मुझे पता हो। मैंने यहाँ पे LHS लिया साइन 30 प्लस 60 साइन 90 विच इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसमें RHS ले लिया, इट इज साइन 30 प्लस साइन 60। मैंने आपसे एक बात कही थी, ऐसा ना हो कि आप 090 ले लो तो उसमें ट्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रू के लिए सभी पेयर्स में ट्रू होना चाहिए और बेसिकली ये सभी पेयर्स में ट्रू नहीं होगा, इसलिए तुम लोगों ने ये एक रिजल्ट लिया और इससे इसका आंसर आ गया 1 प्लस रूट 3/2। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो ये वैल्यू ऑफ 1 है वो 1 प्लस रूट 3/2 के इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए जो साइन A प्लस बी होगा वो साइन A प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो इट इज़ अ फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट मेरे पास है दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रूली वर्क नहीं करेगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि जो रिजल्ट मैंने इसके LHS से ऑब्टेन किया दैट इज़ 1 और जो रिजल्ट मैंने इसके RHS से ऑब्टेन किया दैट इज़ 1 प्लस रूट 3/2 आर नॉट न्यूमेरिकली इक्वल टू ईच अदर। अगर ऐसा हो रहा है तो साइन A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि मैंने कहा था अगर कोई भी टर्म ट्रू होगी तो 100% हर रेशियो के लिए ट्रू होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर रेशियो 60 और 30 पे ट्रूली वर्क नहीं कर रही। दैट इज वाई वी कंसिडर अवर स्टेटमेंट एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ वी ट्राई द पार्ट नंबर सेकंड हियर। In a part number second, it is given that the value of sin theta increase as theta increase। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम जब आपसे ये टेबल शेयर किया था, सिखाया था आप लोगों को, तो ये चीज़ें मैंने उसी टाइम आपके साथ पॉइंट आउट कर ली थी कि अगर थीटा हमारे पास इन डिफरेंट रेशियोज़ के साथ चल रहा है और मुझे साइन थीटा के रिजल्ट्स पे जाना है, तो साइन थीटा 0 पे तो 0 आएगा, 30 डिग्री पे हाफ आता है, इस पे 1/√2 आएगा, इस पे √3/2 आएगा और इस पे 1 आएगा। तो एज अ रिजल्ट बेटा जैसे मैंने इन वैल्यूज़ को देखा या पॉइंट आउट किया, व्हाट आई एम सेइंग हियर फाइनली, आई एम सेइंग हियर कि ये तो 0 ही रहेगा, दिस इज 0.5 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वेरी केयरफुली 1/√2, तो यू कैन टेक एज √2 एज इट्स एलसीएम और सिंप्लीफाई करते चलूँगा तो ये 0.707 आएगा, 0.71 ले लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे √3/2 तो 1.732 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 0.86 आएगा, 866, तो 0.87 ले लिया राउंड ऑफ करके एंड दिस इज 1। तो व्हाट वी कंक्लूड हेयर, तो वी आर जनरली कंक्लूड हेयर दैट एज ई थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इंक्रीज हो रही है। तो हेंस व्हाट यू से देयर, हेंस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट as value of sin theta increase as theta increase। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो देखो बेटा इस तरह से आप लोगों ने नोट किया कि जो साइन थीटा की वैल्यू है 0 से 0.5, 0.5 से 0.7, 0.7 से 8.7, 8.7 से 1 आ गई। इट मीन्स जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी बड़ी हो रही है, इसलिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज इज द वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट। इन अ वेरी सेम मैनर नाउ वी वर्क फॉर द पार्ट नंबर थर्ड ऑल्सो। इन द पार्ट नंबर थर्ड वी कैन ऑब्जर्व दैट कि वी हैव टू चेक वैल्यू ऑफ 10 cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो एक बार फिर से मैं टेबल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। It is 0, 30, 45 degree, 60 degree and we have 90 degree and here it is cos theta and as it is clear जब हमने टेबल बनाना शुरू किया था आपके साथ लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था कि जो cos theta के रिजल्ट्स आते हैं that is just a reverse order of sin theta only। तो it is 1 √3/2 1/√2 half 0 means 1 0.87 0.71 0.5 and it is 0। What you observe here, क्या समझ आ रहा है? समझ ये आ रहा है कि अब जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
तो हम लिख देंगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंस द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एज अ रिजल्ट द ऑप्शन नंबर 3 इज जस्ट अ रेसिप्रोकल विद द ऑप्शन नंबर 2, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये तो ट्रू स्टेटमेंट थी क्योंकि थीटा के साथ साथ वैल्यू बड़ी हो रही थी, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि थीटा के साथ साथ वैल्यू छोटी हो रही है। नाउ बेटा कंसिडर द पार्ट नंबर 4 हियर, जिसमें हमसे कहा जा रहा है साइन थीटा कॉस थीटा के हमेशा सभी वैल्यू पे इक्वल होता है। तो इट इज़ अ वेरी बिग फॉल्स, क्योंकि हम लोगों को पता है साइन थीटा कॉस थीटा के हमेशा इक्वल नहीं होता है सेम वैल्यू पे। 0 डिग्री पे साइन 0 आ रहा है तो कॉस 1 आ रहा है, 30 पे हाफ आ रहा है तो ये √3 आ रहा है। बस ओनली 45 डिग्री इज दी ओनली डिग्री जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज साइन थीटा equal to cos theta is only possible at theta equal to 45। हाँ, अगर ये लिखा होता है यहाँ पे कि फॉर ऑल वैल्यू की जगह लिखा होता कुछ वैल्यूज पे होता है देयर आर सम वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर दे आर इक्वल, तो यस इट इज ट्रू, बट इन्होंने क्या कहा सभी वैल्यूज पे, और यहाँ पे टेबल से कंफर्म हो रहा है कि ओनली अदर देन 45 डिग्री वो कभी भी इक्वल नहीं होते, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल सिर्फ तभी पॉसिबल होगा, इज ओनली पॉसिबल एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब पार्ट नंबर 5 आता है जिसमें लिखा हुआ है कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो यस इट इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है सिंस हमें पता है कॉट ए, अगर ए को 0 डिग्री बोला जा रहा है, अगर ए 0 डिग्री है तो कॉट 0 आ गया, और कॉट 0 इज समथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जब मैं कॉट 0 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा, मेरा जो टेबल रिजल्ट आएगा वो नॉट डिफाइन आएगा। तो एज अ रिजल्ट बेटा दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें पहला आंसर फॉल्स आया था, आपने अभी रीजंस देखे, दूसरा आंसर ट्रू आया था, ऑलरेडी मेंशन है वो आपके सामने, थर्ड आंसर फिर से फॉल्स आ गया था क्योंकि पैटर्न डिक्रीज हो रहा था, फोर्थ आंसर भी फॉल्स आया है, लेकिन लास्ट पार्ट इसका ट्रू आ गया है। After completing that our NCERT exercise 8.2, now we are moving some previous year board question based on the concept we discussed in this particular lecture or in our last lecture. And this is the concepts of the question जो trigonometric ratios पे चल रहे हैं, और इसका जैसा भी एक क्वेश्चन हमने अपनी NCERT क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, तो it is very same as that one and this is the one of the most important question also. अब one of the question जो 2012, 10 and 8 तीनों रिस्पेक्टिव ईयर्स में हमारे को बोर्ड पेपर में मिला था ये क्वेश्चन। हेयर वी हैव अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन कि साइन a माइनस बी हाफ है एंड कोस a प्लस बी भी हाफ है, और a प्लस बी का जो सम है वो 0 से 90 के बीच में है, और एंगल a एंगल b से बड़ा है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू कंसिडर हेयर वेरी केयरफुली कि साइन की वैल्यू हाफ आ रही है। अब लेकिन मुझे ये सोचना है कि साइन के टेबल में हाफ आता कब है, तो वी कैन सिंपली से इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ साइन व्हेन इट इज एट 30 डिग्री। तो व्हेन यू कंपेयर देम ऑन कंपेयरिंग द अबव टू रिजल्ट्स वी गेट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। द रीजन इज वेरी क्लियर, भाई ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। And after comparing their angles, we are getting the first statement here that is a minus b is 30 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है ये बात बहुत easily आप बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि साइन a माइनस बी हाफ है, और जनरली साइन 30 पे हाफ होता है, इसलिए a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल आ गया है। In a very same manner, we need to consider the second statement of our question जिसमें cos a plus b हाफ दे रखा है, but again we know that कि cos a प्लस बी जो हाफ दे रखा है वो हाफ बेसिकली 60 डिग्री पे होता है, एंड दिस इज द पॉइंट यू नीड टू कंसिडर योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल वैल्यू। ऐसे मैंने इसे खुद निकाला सोचते हुए कि साइन में हाफ कब आता है, ऐसे cos में हाफ कब आता है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट
cos A plus B is numerically equal to cos 60 degree. By equating their angles, we are getting the another relationship between A and B as the second statement. तो बेटा आप लोगों ने बहुत आराम से और ध्यान से केयर किया होगा। जब साइन की रेशो थी तो साइन के रेशो टेबल का यूज़ किया, जब कॉस से कंपैरिजन थी तो कॉस की रेशो टेबल का यूज़ किया। अब मुझे यहाँ पे दो रिजल्ट्स मिल गए हैं और मुझे इन्हें वन बाय वन सॉल्व करना है। तो वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें a माइनस बी तो 30 डिग्री दे रखा है और a प्लस बी 60 डिग्री दे रखा है। इसमें b से b कैंसिल आउट हो गया, इट्स 2a इक्वल टू 90 डिग्री बेटा, तो वैल्यू ऑफ a बिकम 45। अब जब a आ गया है इसे यहीं कहीं पुट कर लेते हैं। 45 प्लस b इज 60 डिग्री, the value of b is 15. So I think beta the result we get from our question is 45 and 15. So like in a previous question of our NCERT, the output is again very same like that one, क्योंकि यहाँ पे a minus b 30 आ गया था, a plus b 60 आ गया था। दोनों इक्वेशंस को simultaneously solve करा as we simplified like the linear equation in two variable of first और third chapter of our class 10, जो हमने इसी साल third chapter डिस्कस किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने इन्हें ऐड करा, क्योंकि b से b कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि b और b के कोएफिशिएंट पहले से सेम थे विद अपोजिट साइन। व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर 2a इक्वल टू 90 आया, a बिकम 45 आफ्टर शिफ्टिंग दिस 2 टू अनदर साइड। ये तो समझ ही गए होंगे, इट इज 90/2। तो एज अ रिजल्ट a बिकम 45 and when we put the value of a in any of these two equation, we are getting the value of b as 60 minus 45, जिसने मुझे आंसर दे दिया 15 डिग्री। Because of that, the respective answer we get for the question number first as a extra question, as a previous question of our lecture, जिसमें a और b 45 डिग्री एंड 15 डिग्री respectively जनरेट हुआ। Now बेटा कंसिडर करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हियर, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द वेरी सेम कंसेप्ट जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। इसमें कहते हैं a और b एज द एक्यूट एंगल्स है, उन्हें फाइंड आउट करें। जब साइन a प्लस 2b का रिजल्ट √3/2 है, बट वी अगेन नो दैट द वैल्यू ऑफ √3/2 इन द केस ऑफ साइन इज एट 60 डिग्री। तो दिस इज द रिजल्ट यू नीड टू रिमेंबर। देयरफॉर वी कैन से दैट द साइन a प्लस 2b इज फाइनली इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग देयर एंगल्स, जैसे मैं इनके एंगल्स को कंपेयर करूँगा, we are getting a relation here, a plus 2b is equal to 60 degree. So as a result my dear student, we are getting the first relation, first equation from the given question. उम्मीद है अब आपको ये प्रैक्टिस में क्लियर हो गया होगा कि here we have a value of sin theta और the value of sin theta is here √3/2 and it is clear from the data that कि जो √3/2 sin theta की वैल्यू आ रही है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास ये √3/2 ही चाहिए था साइन के रिस्पेक्ट में। तो साइन a प्लस 2b साइन 60 के इक्वल हो गया, इट मीन्स a प्लस 2b 60 डिग्री हो गया। इन अ वेरी सेम मैनर वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन कि cos a प्लस 4b 0 है, बट वी ऑल नो इन द केस ऑफ cos द 0 इज पॉसिबल एट 90 डिग्री। cos के टेबल में जो रेशियो 0 आती है वो 90 डिग्री पे आती है। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है, ये कंफर्म करता है कि cos a प्लस 4b cos 90 डिग्री होना चाहिए। एज अ रिजल्ट a प्लस 4b हमारे पास 90 डिग्री ही आ गया। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस एज द अनदर इक्वेशन ऑफ आवर क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा दोनों बेसिक क्वेश्चन को कंपेयर करने के बाद, आपस में कंपेयर होने के बाद ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे a प्लस 2b 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे a प्लस 4b 90 डिग्री आ रहा है। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसपे ये हमने सीखा था कि बाय द मीन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we can easily simplify the given linear equations. And here again I am using the concept of elimination method on subtracting it. This is minus minus minus, ये cancel out हो गए, minus 2b equal to minus 30 आ गया, it is minus 30 upon minus 2 आ गया, the b we get from it is 15 degree आ गया। I think you are getting it very carefully.
मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ए से कैंसिल आउट हो गया, 2b में से 4b गया, इट इज़ 2b माइनस 4b गिव यू माइनस 2b, 60 में से 90 गया माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 30 डिवाइड हो गया, एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर इज 15. पुट द वैल्यू ऑफ b in any of the equation, so we can put it in our equation number first here, or as we substitute this value in our equation number first and simplifying it carefully, we will obtain that कि जो result of a आएगा that is basically 30 degree. तो इस तरह से जो value of a आ गई वो 30 degree आ गई. तो as a result the value of our a and b for this particular question number second is 30 degree and 15 degree respectively. Recheck the answer. आराम से देखो, साइन के टेबल में √3/2 60 पे होता है, इसलिए a + 2b 60 डिग्री हुआ. कोस के टेबल पे 0 डिग्री 90 पे होता है, इसलिए a + 4b 90 डिग्री हुआ. आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट टू इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी सिंप्लीफाई देम इन अकॉर्डिंग टू आवर लीनियर इक्वेशंस मेथड, एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ b as 15, a as 30. आप किसी भी इंस्टेंट पे इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर 100% दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ना बेटा कंसिडर करें आप सब मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास है अगर साइन a + b, देखो ये वन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में, साइन a + b इक्वल टू कॉस a - b विच इज इक्वल टू 1 इज गिवन टू अस, एंड a + b का जो सम है वो 90 तक हो सकता है और लेस देन 90 रह सकता है, और हमें a और b निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इट इज क्लियर दैट कि जो साइन a + b है that is 1, और we already know that कि साइन की वैल्यू 1 आती है 90 डिग्री पे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन सिंपली से कि जो साइन a + b है that is basically equal to साइन 90 डिग्री, इसलिए a + b एज द रिलेशन 90 डिग्री यहाँ पे आ गया. तो सिमिलरली बेटा जैसे हमारे पास साइन a + b का सम 1 था, ऐसी कॉस a - b की वैल्यू भी 1 है, और एक बार फिर से हमें पता है कि जो ये कॉस 1 जो होता है वो 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे आता है. द वैल्यू ऑफ कॉस इज 1 एट 0 डिग्री, इसलिए यहाँ से हम ये कंपेयर करके बोल सकते हैं कॉस a - b इज इक्वल टू कॉस 0, इसलिए a - b 0 डिग्री आ गया. ऑन दी अदर हैंड बेटा फर्स्ट पार्ट से मुझे मिला a + b 90 है, सेकेंड पार्ट से मुझे मिला a - b 0 है. इट इज क्लियर दैट कि साइन a + b 1 है तो साइन 1 90 डिग्री होता है, इसलिए a + b 90 है. कोस a - b 1 है तो कोस की वैल्यू 1 0 डिग्री पे होती है, इसलिए a - b 0 डिग्री है. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे यूज करते हैं. a + b इज 90 डिग्री, a - b इज 0 डिग्री. मुझे a + b और a - b नाम की दो इक्वेशन सिंप्लीफाई होती हुई दिखाई दे गई है. मैं इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँगा. तो 2a = 90, a = 90/2, द वैल्यू ऑफ a वी गेट फ्रॉम इट इज 45 डिग्री. तो उम्मीद कर रहा हूँ मैंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट फॉर्म्स मैंने डिस्कस कर लिया. इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये दोनों ही एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल थी, इसलिए दोनों को 1 by 1 से कंपेयर करा. इससे 90 डिग्री का सम मिल गया, इससे 0 डिग्री का. इन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर दिया. पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन, तो वी यूज अ सेकेंड वन विच इज a - b इज 45, तो a - b = 0, द वैल्यू ऑफ b वी गेट फ्रॉम इट इज 45. तो एज अ रिजल्ट बेटा इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास a और b का जो आंसर आ गया वो 45 डिग्री 45 डिग्री ईच आ गया. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस वी गेट द वन ऑफ द टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर a + b a - b दोनों के सम्स को या डिफरेंस को ऑब्टेन किया, देन उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, एंड वी आर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन एज 45 डिग्री 45 डिग्री ईच. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अवर NCERT एग्जामिनर, जिसमें मेरे पास है इंफॉर्मेशन कि साइन अल्फा हाफ है, बट वी नो डैट साइन के टेबल पे जो हाफ आता है वो 30 डिग्री पे आता है.
इसलिए यहाँ से ये कंफर्म हो चुका है कि साइन अल्फा ही साइन 30 डिग्री है। दिस इज द लॉजिक यू नीड टू रिमेंबर एंड नंबर ऑफ टाइम हमने ऐसे क्वेश्चंस पे वर्क किया है जहाँ पे मुझे ये पता था कि साइन अल्फा हाफ है लेकिन साइन 30 डिग्री हाफ होता है। इसलिए इन शॉर्ट इट इज़ कन्फर्म डैट कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 30 डिग्री आ गई है। तो हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 30 डिग्री। नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन टू अस कि कॉस बीटा हाफ है। अब आप सोचो कॉस बीटा हाफ कब होता है? तो व्हेन यू गो फॉर द टेबल रेशियो ऑफ कॉस and we are finding the result as half, this is possible in the case of cos at 60 degree. This indicate that cos beta is also equal to cos 60 degree. On comparing it, we are obtaining the value of beta as 60 degree. तो अल्फा और बीटा मुझे मिल गया है। अब मुझे क्योंकि वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा के सम की, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 30 प्लस 60. तो माई डियर स्टूडेंट इट इज 90. तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 4 एज द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 90. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ। आप आराम से देखो, इसमें हमारे पास साइन की वैल्यू थी हाफ और साइन में हाफ आता है 30 डिग्री पे, कॉस की वैल्यू थी हाफ, कॉस पे हाफ आता है 60 डिग्री पे, अल्फा 30 मिल गया, बीटा 60 मिल गया। मुझे इन दी एंड अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना था जिसकी वैल्यू 90 आ गई। Now we are moving to a question number 5 as well, which is again one of the question of our NCERT examiner only. And here you can observe that it is mentioned that ABC, triangle ABC is a right angled triangle at C. It means they are simply say that angle C is 90 degree. This is what we have in our question. Since it is confirmed that in a triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is always equal to 180 degree, which is known as angles sum property. ये तो आप सबको ही पता होगा। Now check the question what we have to consider here. मुझे एंगल C 90 पता था और मुझे cos A plus B की वैल्यू निकालनी थी। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A plus B. तो A plus B plus 90 is equal to 180. A plus B become 180 minus 90. In short, आप लोग ओरली समझ चुके होंगे कि A plus B का जो सम आ गया वो 90 आ गया, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, उसमें से एंगल C 90 है तो A plus B भी 90 आ गया। Now we have to find out the value of cos A plus B. This cos A plus B is basically cos 90 and the value of cos 90 is 0. So as a result, in the part number 5, which is also a very same question with same process, मुझे A plus B का सम 90 मिला और मुझे क्योंकि cos A plus B की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स cos 90 की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे जो 90 डिग्री है यानी कि cos 90 वो 0 है। सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हेयर, जहाँ पे हम लोगों ने आज अपने लिए NCERT एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करी, which is totally based on the concept of trigonometric ratio table, and after that we discuss 5 important questions, different questions of this particular concept जो बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे।